السلام علیکم، میٹرو ون نیوز کے ساتھ میں ہوں سائمہ خان۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کریں کہ گڈاب ٹاؤن کے میونسپل کمشنر محمد نواز مہر اور پارلیمانی لیڈر اور کونسل ممبر میر عباس تالپور نے یو سی گلشن حدید میں اسٹریٹ لائٹس کے سامان اور تنصیب کے منصوبے کا باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ میونسپل کارپوریشن گڈاب کے چیئرمین طارق عزیز بلوچ کی خصوصی ہدایات پر میونسپل کمشنر محمد نواز مہر اور پارلیمانی لیڈر و کونسل ممبر میر عباس تالپور نے یو سی گلشن حدید میں اسٹریٹ لائٹس کے سامان اور تنصیب کے منصوبے کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ افتتاحی پروگرام میں کونسل ممبر، جنرل سیکرٹری سٹی ایریا 85 عبدالستار جھوکیو اور متعلقہ محکمہ جات کے افسران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر چیئرمین ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گڈاب طارق عزیز بلوچ نے اپنے پیغام میں کہا، گڈاب ٹاؤن کے تمام یونین کونسلز میں عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔ یو سی گلشن حدید میں اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب سے نہ صرف علاقے میں روشنی کے بہتر انتظامات ہوں گے بلکہ شہریوں کو رات کے وقت تحفظ اور سہولت بھی میسر آئے گی۔ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جا رہا ہے اور ترقیاتی کاموں کا یہ سلسلہ کونسل ممبران کی مشاورت سے آئندہ بھی جاری رہے گا۔ میونسپل کمشنر گڈاب محمد نواز مہر نے اس موقع پر کہا، اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب شہری سہولیات کو بہتر بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ منصوبے کو مقررہ معیار اور وقت کے اندر مکمل کیا جائے تاکہ عوام کو براہ راست فائدہ پہنچ سکے۔ پارلیمانی لیڈر و کونسل ممبر میر عباس تالپور نے کہا، یو سی گلشن حدید میں اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب علاقہ مکینوں کا دیرینہ مطالبہ تھا جسے چیئرمین گڈاب ٹاؤن طارق عزیز بلوچ کی قیادت میں عملی شکل دی جا رہی ہے۔ اس منصوبے سے علاقے میں امن و امان اور عوامی سہولت میں واضح بہتری آئے گی۔ ہم تمام منتخب نمائندے عوامی خدمت کے مشن کو خلوص اور دیانتداری کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ آخر میں علاقائی معززین نے منصوبے کا جائزہ لیا اور ترقیاتی کاموں کے معیار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ڈبل ای وسیم آرائیں، ڈائریکٹر انفارمیشن رضوان صابر، سیکرٹری اطلاعات سٹی ایریا عبدالستار بٹ، کونسلرز بشیر جنیجو، صدام خاص خیلی، عبدالولی بھگیو، وقار لاڑک بھی موجود تھے۔ ڈیپٹی کمشنر ویسٹ ذوالفقار علی میمن کی سربراہی میں ڈی سی آفس میں فائر سیفٹی آڈٹ کے حوالے سے ایک انتہائی اہم اور فیصلہ کن اجلاس ہوا، جس میں منگوپی ٹاؤن کے چیئرمین حاجی نواز بروہی نے شرکت کی اور فائر سیفٹی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر ویسٹ ذوالفقار علی میمن کی سربراہی میں ڈی سی آفس میں فائر سیفٹی آڈٹ کے حوالے سے ایک انتہائی اہم اور فیصلہ کن اجلاس منعقد ہوا، جس میں منگوپی ٹاؤن کے چیئرمین حاجی نواز علی بروہی نے نہ صرف شرکت کی بلکہ فائر سیفٹی اقدامات کے حوالے سے واضح اور مضبوط موقف بھی پیش کیا۔ اجلاس میں منگوپیر، اورنگی اور مومن آباد ٹاؤنز کے سپرنٹینڈنٹ انجینئرز، انتظامیہ افسران اور متعلقہ اداروں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں منگوپیر ٹاؤن کے میونسپل کمشنر احمد یار، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن حافظ محمد شیخ، انچارج سروے فائر سیفٹی آڈٹ غفار جتوئی بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، ایس بی سی اے، ریسکیو 1122 فائر بریگیڈ، سول ڈیفنس اور دیگر متعلقہ اداروں کے افسران اور نمائندگان بھی اجلاس میں شریک تھے۔ اجلاس میں حالیہ گل پلازہ سانحہ کے تناظر میں فائر سیفٹی کے نظام پر تفصیلی غور کیا گیا اور اس بات پر زور دیا گیا کہ تمام بڑی اور بلند عمارتوں کی فائر سیفٹی آڈٹ رپورٹ ایک ہفتے کے اندر مکمل کر کے چیف سیکرٹری سندھ کو جمع کرائی جائے۔ اس موقع پر منگوپی ٹاؤن نے دیگر ٹاؤنز کے مقابلے میں سب سے پہلے رپورٹ جمع کرانے کا عزم ظاہر کیا، جسے انتظامیہ نے سراہا۔ چیئرمین منگوپی ٹاؤن حاجی نواز علی بروہی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گل پلازہ کا افسوسناک واقعہ ہم سب کے لیے ایک سخت وارننگ ہے۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ذمہ داری ہے اور فائر سیفٹی کے معاملے پر کسی بھی قسم کی غفلت یا لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ منگوپی ٹاؤن میں تمام بڑی عمارتوں کا فائر سیفٹی آڈٹ شفاف، جامع اور عملی بنیادوں پر کیا جائے گا اور رپورٹ مقررہ مدت سے قبل چیف سیکرٹری سندھ کو جمع کرائی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ منگوپی ٹاؤن انتظامیہ تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے اور فائر بریگیڈ، ریسکیو 1122، سول ڈیفنس اور ایس بی سی اے کے تعاون سے ایک مضبوط اور مؤثر فائر سیفٹی میکینزم تشکیل دیا جا رہا ہے۔ ہم صرف کاغذی کارروائی نہیں چاہتے بلکہ زمینی حقائق پر مبنی عملی اقدامات یقینی بنائیں گے تاکہ آئندہ کسی بھی سانحہ سے قبل مؤثر روک تھام ممکن ہو سکے۔ چیئرمین حاجی نواز علی بروہی نے افسران کو ہدایت کی کہ آئندہ مرحلے میں فائر سیفٹی آڈٹ رپورٹس کو مزید بہتر، جامع اور تکنیکی بنیادوں پر تیار کیا جائے اور تمام قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ فائر سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی سفارش کی جائے گی۔ اجلاس کے اختتام پر اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ گل پلازہ سانحہ کے بعد فائر سیفٹی قوانین پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا اور تمام متعلقہ ادارے مشترکہ حکمت عملی کے تحت کام کریں گے تاکہ شہریوں کی جان و مال کو محفوظ بنایا جا سکے اور کراچی میں فائر سیفٹی کے نظام کو مزید مضبوط اور مؤثر بنایا جا سکے۔
औरंगी टाउन के मरकजी दफ्तर में क्लिक प्रोजेक्ट के वक्त की आमद। टाउन चेयरमैन हाजी जमील सिया से तामीराती कामों पर गुफ्तगू की। हाजी जमील सिया ने क्लिक की टीम को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया ने कहा है कि क्लिक के ताउन से शाहराहों, सड़कों की तामीर, पेवर ब्लॉक्स की तनसीब, टीएमसी औरंगी के स्कूलों की तामीर, इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करके औरंगी टाउन को खूबसूरत और मॉडल टाउन बना रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया ने अपने दफ्तर में क्लिक के वफद से गुफ्तगू करते हुए किया। क्लिक के 2 रुकनी वफद की सरबराह तनवीर इशरत ने गुफ्तगू करते हुए टाउन चेयरमैन को बताया कि MM पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि क्लिक की तरफ से मुकम्मल किए जाने वाले मंसूबों के बारे में मुतल्लिका टाउन चेयरमैन से राय ली जाए। उन्होंने क्लिक की जानिब से मुकम्मल किए जाने वाले मंसूबों के बारे में बताया कि आफाक खान शहीद पार्क से बदर चौक 4 नंबर औरंगी टाउन की सड़क तामीर की गई है और सेक्टर G14 औरंगी टाउन के अंदरूनी गलियों में पेवर ब्लॉक्स की तनसीब की गई है। टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया ने वफद को क्लिक की जानिब से मुकम्मल किए जाने वाले मंसूबों पर क्लिक का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, इन मंसूबों से औरंगी टाउन की आवाम को बहुत फायदा हुआ है। औरंगी की आवाम का एक देरीना मसला हल हुआ है, मगर अफसोस के क्लिक के हुकाम ने बार बार मालूम करने पर भी इन मंसूबों की तफसील फराहम नहीं की कि सड़क की लंबाई कितनी है, कितने रकबे पर पेवर ब्लॉक्स की तनसीब की गई है और इस पर कितनी लागत आई है और कब ये मंसूबे मुकम्मल हुए। इन मंसूबों का इफ्तिताह किसने किया और ना ही दौरान तामीर टाउन के इंजीनियर को निगरानी में शामिल किया गया। हमारे महकमा इंजीनियरिंग को पता ही नहीं कि तामीर का क्या मेयार सेट किया गया है, इसलिए औरंगी टाउन की इंतजामिया इन दोनों मुकम्मल होने वाले मंसूबों पर अपनी राय नहीं दे सकते। आपसे दरख्वास्त है कि क्लिक हुकाम से कहें कि जो भी मंसूबा टाउन की हदूद में शुरू करें, इस मंसूबे से टाउन इंतजामिया को लाजमी एतमाद में लें। हम भी अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम अपने मसाइल हल करने के लिए हमसे राब्ता करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम उनके मसाइल हल करवाएंगे। लिहाजा अवामी मफाद में क्लिक हुकाम से अपील है कि कोई भी मंसूबा शुरू करें तो इसके बारे में टाउन इंतजामिया को उसकी तमाम तफसील से आगाह करें और अवामी नुमाइंदों की तजावीज़ भी इन मंसूबों में शामिल करें। मुझे उम्मीद है कि औरंगी टाउन और क्लिक मिलकर TMC औरंगी के स्कूलों की तामीर और औरंगी टाउन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तामीर करेंगे, औरंगी को खूबसूरत और मॉडल टाउन बनाएंगे। चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब का C1 एरिया कब्रिस्तान का दौरा। शब बारात के इंतजामात का हतमी जायजा लिया। टाउन चेयरमैन फराज हसीब ने कहा, सफाई सुथराई के मौसर इंतजाम, पानी की दस्तियाबी, सर्द मौसम के पेश नज़र खुसूसी इक़दामात। कब्रिस्तान में जहाँ जहाँ लाइट्स मौजूद नहीं वहाँ लाइट्स नस्ब की जाएँ ताकि रात के वक्त ज़ायरीन को किसी किस्म की परेशानी ना हो। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब ने शब बारात के मौके पर आवाम को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए C1 एरिया कब्रिस्तान का दौरा किया और वहां किए जाने वाले इंतजामात का हतमी जायजा लिया। दौरे के मौके पर चेयरमैन लियाकताबाद टाउन ने डायरेक्टर सैनिटेशन और इनके अमले को खुसूसी हिदायत जारी करते हुए कहा, शब बारात के दौरान कब्रिस्तान में आने और जाने वाले शहरियों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। उन्होंने सफाई सुथराई के मौसर इंतजाम, पानी की दस्तियाबी, सर्द मौसम के पेश नजर खुसूसी इकदामात और मजमूई नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने की सख्त हिदायत दी। चेयरमैन फराज हसीब ने डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल को कब्रिस्तान में रोशनी के इंतजामात पर भी जोर देते हुए कहा कि जहाँ जहाँ लाइट्स मौजूद नहीं वहाँ फौरी तौर पर लाइट्स नस्ब की जाएं ताकि रात के वक्त ज़ायरीन को किसी किस्म की परेशानी ना हो। उन्होंने डायरेक्टर पार्क्स को भी मुखातिब करते हुए कब्रिस्तान में पौधों की छटाई, झाड़ियों की सफाई और सब्जा की बेहतर देखभाल के अहकामात जारी किए ताकि कब्रिस्तान का माहौल साफ, खुशगवार और महफूज बनाया जा सके। इस मौके पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डायरेक्टर पार्क्स रेहान हमदानी, डिप्टी डायरेक्टर सैनिटेशन तफज्जुल और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन फराज हसीब ने वाज़ेह किया कि शब बारात के मौके पर आवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना टाउन इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है और इस हवाले से किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह का कहना है कि शब बारात से कबल ही तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। टाउन की जानिब से दोनों कब्रिस्तानों के बाहर कैंप लगाए जाएंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह की सदारत में टाउन ऑफिस गुलबर्ग में शब बारात के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में शब बारात के मौके पर टाउन में सफाई, रोशनी, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा लिया गया और मुतल्लिका अफसरान को बर वक्त और मौसर इकदामात की हिदायत जारी की गई। इजलास में म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलबर्ग टाउन अमजद अली पताफी, डायरेक्टर एडमिन मोहम्मद अली, डायरेक्टर बागात मोहम्मद नदीम हनीफ, XEN BNR मोहम्मद सुहेल खान,
UCNMNE मोहम्मद यावर जबकि सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान भी शरीक थे। इस मौके पर चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने कहा, गुलबर्ग टाउन हमेशा की तरह शब बारात से कबल ही कब्रिस्तानों के अतराफ और मसाजिद इमाम बारगाह के अतराफ सफाई सुथराई और रोशनी के इंतजामात के कामों का आगाज कर दिया गया है। गुलबर्ग टाउन की हदूद में 2 कब्रिस्तान आते हैं। इंशाअल्लाह शब बारात से कबल ही तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे और आने वाले ज़ायरीन कबूर को बेहतर सहूलियात मुयसर आएंगी और टाउन इंतजामिया की जानिब से दोनों कब्रिस्तानों के बाहर कैंप लगाए जाएंगे जहां तमाम मुतल्लिका डिपार्टमेंट के अफसरान और अमला मौजूद होगा ताकि लोगों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकें। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर अमजद अली पताफी ने हिदायत की कि शब बारात के मौके पर मसाजिद, कब्रिस्तानों और अहम शाहराहों पर सफाई, लाइटिंग और नकासी आप के इंतजामात को यकीनी बनाया जाए ताकि आवाम को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। उन्होंने तमाम मुतल्लिका महकमों को हिदायत की कि बाहिमी ताउन से फराइज़ सर अंजाम दें और शहरियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करें। अमीर जमात इस्लामी ज़िले वस्ती सैयद वजिया हसन का चेयरमैन नाज़माबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर के हमरा राशिद मिन्हास एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स का दौरा। राशिद मिन्हास एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में नए क्लासरूम्स की तामीर, इमारत की मजबूती और तोसी, जदीद तालीमी सहूलियात की फराहमी। राशिद मिन्हास एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में जारी तरक्याती काम इलाके के बच्चों के लिए मेयारी तालीम के हुसूल में अहम किरदार अदा करेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी ज़िला वस्ती सैयद वजी हसन ने चेयरमैन नाज़माबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर के हमरा राशिद मिन्हास एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। कॉम्प्लेक्स में नई क्लासरूम्स की तामीर, इमारत की मजबूती और तोसी, जदीद तालीमी सहूलियात की फराहमी का जायजा भी लिया। इस मौके पर वाइस चेयरमैन मोहम्मद नोमान सिद्दीकी, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन के अलावा UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबरान स्टीयरिंग कमेटी एजुकेशन भी हमरा मौजूद थे। चेयरमैन नाज़माबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने राशिद मिन्हास एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में जारी तरक्याती और तामीराती कामों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि कॉम्प्लेक्स में नई क्लासरूम्स की तामीर, इमारत की मजबूती और तोसी, जदीद तालीमी सहूलियात की फराहमी, इलेक्ट्रिक और सैनिटरी निज़ाम की बेहतरी, पीने के साफ पानी, मुनासिब रोशनी और हवादारी के इंतजामात के साथ साथ तलबा के लिए महफूज और मेयारी तालीमी माहौल फराहम करने के लिए काम तेजी से जारी है। चेयरमैन नाज़माबाद टाउन ने मजीद बताया कि तमाम तामीराती काम जदीद तकाज़ों और मुकर्ररा मेयार के मुताबिक अंजाम दिए जा रहे हैं, जबकि मंसूबे की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए स्टीयरिंग कमेटी एजुकेशन और मुतल्लिका अफसरान मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। उनका कहना था कि नाज़माबाद टाउन इंतजामिया तालीम के फरोग और सरकारी तालीमी इदारों की बेहतरी के लिए अमली इकदामात पर यकीन रखती है। अमीर जमात इस्लामी ज़िला वस्ती सैयद वजी हसन ने मंसूबे की मजमूई पेशरफ, तामीराती मेयार और काम की रफ्तार को सराहते हुए इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि राशिद मिन्हास एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में जारी तरक्याती काम इलाके के बच्चों के लिए मेयारी तालीम के हसूल में अहम किरदार अदा करेंगी। उन्होंने इस मंसूबे को एक मजबूत और खुश आइन कदम करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि ये इदारा मुस्तकबिल में मिसाली तालीमी मरकज बनेगा। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक का बुलेटिन में खबर शामिल करें कि चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख शब बारात की आमद के सिलसिले में कोरंगी नंबर 1 कब्रिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इस मौके पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अफसरान और बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। शब बारात के बामरकत मौके पर चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने कोरंगी टाउन के इलाके चक्रागोट में वाकई कब्रिस्तान का दौरा किया। दौरे का मकसद शब बारात के मौके पर शहरियों के लिए किए गए बल्दियाती इंतजामात का जायजा लेना और मरहूमीन की कब्रों पर फातिहा ख्वानी के लिए आने वाले अफराद को सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना था। चेयरमैन कोरंगी टाउन ने कब्रिस्तान की सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स, पानी की फराहमी, दाखिली व खारजी रास्तों और सिक्योरिटी इंतजामात का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान को हिदायत दी कि कब्रिस्तान में खुसूसी सफाई मुहिम जारी रखी जाए, कूड़ा करकट फौरी तौर पर उठाया जाए और M&E को भी हिदायत दी कि खराब लाइट्स को फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाए और महकमा बागात को भी हिदायत दी कि दाखिली व खारजी रास्तों से झाड़ियां हटाकर रास्ते साफ किए जाएं ताकि आने वाले शहरियों को परेशानी का सामना न हो। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि शब बारात एक मुकद्दस और रूहानी रात है जिसमें बड़ी तादाद में लोग अपने मरहूमीन के लिए दुआ और फातिहा ख्वानी के लिए कब्रिस्तानों का रुख करते हैं। लिहाजा टाउन इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम की जाएं। आज हमने कोरंगी 1 नंबर का जो चक्रागोट का बड़ा कब्रिस्तान है जो कराची के बड़े कब्रिस्तानों में शुमार होता है, शब बारात आमद है और वहाँ पर म्यूनसिपल सर्विसेज के हवाले से जो हमारी जिम्मेदारी थी उस लिए मैंने वहाँ विज़िट किया। अपने तमाम डिपार्टमेंट के लोग थे, इम्तियाज़ भुट्टो थे हमारे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के,
اور ٹی ایم سی کے افسران موجود تھے, ایم این ڈی کے لوگ تھے, بی این آر کے لوگ تھے, محکمہ باغات تھے, سینیٹیشن کے لوگ تھے. تو الحمدللہ وہاں پر ہم اس کو پورے روڈ کو روشن بھی ہم نے کیا ہوا ہے. دوبارہ جہاں لائٹیں خراب ہوئی ہیں اس کو ریپیئر مینٹیننس کریں گے, سڑک کی ریپیئر مینٹیننس کریں گے. اور قبرستان کی ہم نے ویسے ہی کورنگی کی حدود میں جتنے قبرستان آتے ہیں, کم و بیش 4 کے قریب قبرستان ہیں, ہم نے پچھلے 1.5 ماہ سے ہم اس کے اوپر ہم اپنا کام جاری و ساری ہے. جھاڑیاں اس کو ریموو کرا رہے ہیں اور صفائی ستھرائی کا کام ہو رہا ہے. تو آج ہمارے ضروری تھا, اگلے نیکسٹ ویک ہماری شب برات کی آمد ہے. مختلف آبادیوں سے زائرین اپنے پیاروں کی قبروں پہ آئیں گے فاتحے کے لیے اور ان کو سہولت پرووائڈ کرنی ہے. ہمارا کیمپ بھی انشاءاللہ ایک بڑا وہاں لگے گا جہاں میٹھے اور پانی کی اور شربت کے سبیل بھی لگائیں گے ہم, تاکہ لوگوں کو ہم مشکلات جو ان کی بڑھ جاتی ہیں, پیاس کی, یہ سب اس کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ کیمپ کے ذریعے. اور ہمارا پورا اسٹاف وہاں ڈپیوٹ ہوگا, ہمارے وہاں کی کونسلر موجود تھے, اہل علاقہ موجود تھا. تو یہ سب بہتری ہو رہی ہے کورنگی کے اندر انشاءاللہ. اس سے پہلے مشکلات تھی جب ہم بلدیاتی امور کے چیئرمین اور کونسلر نہیں تھے تو مشکلات میں اضافہ ہوتا تھا. اب انشاءاللہ مشکلات میں کمی ہوئی ہے. چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے مزید کہا کہ قبرستانوں میں پانی, وضو اور روشنی کے مناسب انتظامات نہایت ضروری ہیں. اس ضمن میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. دورے کے دوران چیئرمین کورنگی ٹاؤن نے قبرستان میں تعینات عملے کو ہدایت دی کہ شب بارات کے دوران اپنی ڈیوٹیز پوری ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دیں. انہوں نے شہریوں سے بھی اپیل کی کہ قبرستان کی حرمت کا خیال رکھیں, صفائی برقرار رکھیں اور انتظامیہ سے مکمل تعاون کریں. علاقہ مکینوں نے چیئرمین کورنگی ٹاؤن کے دورے اور بر وقت اقدامات کو سراہتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ مستقبل میں بھی عوامی فلاح و بہبود کے لیے اسی طرح سے اقدامات کیے جائیں گے. کیمرامین زبیر احمد کے ساتھ عامر اوان, میٹرو 1 نیوز, کراچی. چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف کا سیکٹر B11 میں گرلز کالج کے اطراف زیر تعمیر سڑک کا معائنہ, ترقیاتی کاموں میں استعمال ہونے والے مٹیریل کا خاص خیال رکھا جائے. افسران کو ہدایت کر دی. تفصیلات اس رپورٹ میں. چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف نے نارتھ کراچی سیکٹر B11 میں واقع گورنمنٹ گرلز کالج کے اطراف زیر تعمیر سڑک کا تفصیلی معائنہ کیا اور ترقیاتی کام کی رفتار و معیار کا جائزہ لیا. اس موقع پر محکمہ B&R آفیسر فیصل صغیر, انجینئر صفدر حسین, انجینئر ساجد صدیقی اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے. چیئرمین محمد یوسف نے موقع پر موجود افسران سے سڑک کی تعمیراتی مٹیریل کے معیار, نکاسی آب کے انتظامات اور تکمیل کی مدت سے متعلق سوالات کیے اور ہدایات دیں کہ تعلیمی ادارے کے اطراف تعمیر ہونے والی سڑک کو خاص طور پر محفوظ, ہموار اور پائیدار بنایا جائے تاکہ طالبات, اساتذہ اور مقامی شہریوں کو آمد و رفت میں سہولت حاصل ہو. انہوں نے کہا کہ تعلیمی مراکز کے گرد بہتر انفراسٹرکچر نہ صرف سہولت فراہم کرتا ہے بلکہ شہری نظم و ضبط کو بھی بہتر بناتا ہے. چیئرمین نے مزید کہا کہ نیو کراچی ٹاؤن میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا مقصد محض سڑکوں کی تعمیر نہیں بلکہ عوام کے معیار زندگی میں بہتری لانا ہے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. بعد ازاں چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف پاور ہاؤس چورنگی کے قریب ٹرک کے حادثے میں جاں بحق ہونے والے نوجوان کے گھر سیکٹر 5C1 پہنچے, جہاں انہوں نے مرحوم کے والدین اور اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور مرحوم کی مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی. انہوں نے کہا کہ اس افسوسناک واقعے نے پورے علاقے کو غمزدہ کر دیا ہے اور شہریوں کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے. اظہار تعزیت کے موقع پر چیئرمین وائس چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن شعیب بن ظہیر بھی ٹاؤن چیئرمین کے ہمراہ موجود تھے. ٹاؤن چیئرمین مومن آباد ٹاؤن ملک عارف آوان نے میونسپل کمشنر مومن آباد ٹاؤن خالد حسین جتوئی کے ہمراہ ایکشن کمیٹی بنارس سے باچا خان چوک UC نمبر 7 مومن آباد ٹاؤن کی دعوت پر منعقدہ جرگے میں شرکت کی اور کمیٹی کے اراکین سے ملاقات کی. تفصیلات اس رپورٹ میں. ٹاؤن چیئرمین مومن آباد ٹاؤن ملک عارف آوان نے میونسپل کمشنر مومن آباد ٹاؤن خالد حسین جتوئی کے ہمراہ ایکشن کمیٹی بنارس باچا خان چوک UC نمبر 7 مومن آباد ٹاؤن کی دعوت پر منعقدہ جرگے میں شرکت کی اور کمیٹی کے اراکین سے ملاقات کی. اس موقع پر ان کے ہمراہ چیئرمین UC نمبر 7 ادریس شمزئی, وائس چیئرمین ڈاکٹر کبیر اور متعلقہ بلدیاتی افسران بھی موجود تھے. جرگے کے دوران ایکشن کمیٹی بنارس باچا خان چوک کے نمائندگان نے علاقے کو درپیش بلدیاتی
बलदियाती मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की, बिलखसूस तजावुजात के मुस्तकिल बुनियादों पर खात्मे, सफाई सुथराई, नकासी आब और दीगर बुनियादी शहरी सहूलियात की बेहतरी के अमूर पर जोर दिया गया। टाउन चेयरमैन मलिक आरिफ अवान ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा, टाउन इंतजामिया आवामी मसाइल के हल के लिए संजीदा और अमली इकदामात कर रही है। तजावुजात के खात्मे समेत तमाम बल्दियाती अमूर कानून के दायरे में रहते हुए मरहलावार हल किए जाएंगे। उन्होंने एक्शन कमेटी बाचा खान चौक को यकीन दहानी करवाई के इलाके को दरपेश मसाइल के खात्मे के लिए मौसर और पायदार इकदामात किए जाएंगे और आवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। म्यूनिसिपल कमिश्नर खालिद हुसैन जतोई ने कहा है कि टाउन चेयरमैन की हिदायत की रोशनी में बल्दियाती अफसरान को फील्ड में मुतहर्रिक रखा गया है और बनारस समेत मोमिनाबाद टाउन की तमाम यूनियन कमेटियों में बल्दियाती खिदमात को मजीद बेहतर और मौसर बनाया जाएगा। मुलाकात के बाद टाउन चेयरमैन मलिक आरिफ अवान ने म्यूनिसिपल कमिश्नर खालिद हुसैन जतोई के हमरा बनारस चौक और उसके अतराफ का तफसीली दौरा भी किया, जहाँ उन्होंने सफाई, तजावुजात, ट्रैफिक की रवानी और दीगर बल्दियाती सहूलियात का मौके पर जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान को फौरी इकदामात की हिदायत जारी की। आखिर में एक्शन कमेटी बनारस बाचा खान चौक के अरकान ने टाउन चेयरमैन और टाउन इंतजामिया की आमद, मसाइल सुनने और हल की यकीन दहानी पर उनका शुक्रिया अदा किया और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। गुलशन इकबाल डिवीजन की अलादीन पार्क और अतराफ में कार्रवाइयां, तजावुजात का सफाया करा दिया, जबकि एंटी इंक्रोचमेंट टीम का मुसाहिमत का भी सामना करना पड़ा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा इंसदाद तजावुजात बल्दिया उज़्मा कराची गुलशन इकबाल डिवीजन की जानिब से राशिद मिनहास रोड अलादीन पार्क में कार्रवाई करते हुए पार्क के अंदर गैर कानूनी ठेला स्टैंड का खात्मा कर दिया गया और वहां मौजूद ठेलों को जब्त कर लिया गया। दौरान कार्रवाई अमले को शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जिसकी इत्तला पुलिस को कर दी गई और पुलिस के आने पर शरपसंद मौके से फरार हो गए। दूसरी कार्रवाई राशिद मिनहास रोड पर अमल में लाई गई और काउंटर, टेबल, कुर्सियां, पंक्चर का सामान जब्त कर लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर सुहेल राणा ने कार्रवाई की इत्तला पुलिस को देते हुए कहा, कहीं सिक्योरिटी मिलती है और कहीं सिक्योरिटी नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि तजावुजात के खिलाफ रोजाना कार्रवाइयां करेंगे। एडिशनल डायरेक्टर अली अलमदार का कहना है, मेयर कराची की हिदायत पर कार्रवाइयां जारी हैं, तजावुजात लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। मलिक टाउन के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि अवामी मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। मलिक टाउन मलीर 15 जबकि बकरा पीड़ी रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन मलीर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि इलाका मकीनों की जानिब से मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही थी कि तजावुजात की वजह से न सिर्फ ट्रैफिक जाम रहता है बल्कि पैदल चलने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। अवामी मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है, इसीलिए बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई गई है। मुस्तकबिल में भी ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अवामी शिकायत मौसूल होने के बाद मलीर टाउन के इलाके मलीर 15 बकरा पेड़ी रोड पर ट्रैफिक की रवानी में हायल रुकावटें, गैर कानूनी तजावुजात और पैदल चलने वाले राहगीरों को दरपेश मुश्किलात के खात्मे के लिए भरपूर ऑपरेशन किया गया। ये कार्रवाई चेयरमैन मलिक टाउन जान मोहम्मद बलोच और म्युनिसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुरानी की हिदायत पर अमल में लाई गई। ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर इंक्रोचमेंट नसीर अयूब ने की, जबकि मौके पर डिप्टी डायरेक्टर एम अजीम और डिप्टी डायरेक्टर टैक्सेशन इम्तियाज हुसैन भी मौजूद थे। कार्रवाई के दौरान सड़क और फुटपाथ पर कायम तजावुजात को हटा दिया गया ताकि ट्रैफिक की रवानी के साथ साथ राहगीरों को भी महफूज और आसान गुजरगाह फराहम की जा सके। इंतजामिया के मुताबिक इस ऑपरेशन का मकसद शहरी नज़्म व ज़ब्त को बहाल करना, सरकारी अराजी को नाजायज कब्जों से वागुजार कराना और आम शहरियों बिलखसूस राहगीरों को सहूलियात फराहम करना था। ऑपरेशन के बाद बकरा पेड़ी रोड पर ट्रैफिक और पैदल आमदोरफ्त की सूरत हाल में वहाँ से बेहतरी देखी गई, जिस पर इलाका मकीनों ने इत्मीनान का इजहार किया। मलीर टाउन इंतजामिया ने ताजरों और शहरियों से अपील की है कि वो फुटपाथ और सड़कों पर तजावुजात से गुरेज करें और शहर को साफ, मुनज़्ज़म और काबिल आमदोरफ्त बनाने में इंतजामिया के साथ दें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि सानेहाए गुल प्लाजा का ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, मुकदमा दर्ज हो गया, जबकि जल्द तहकीकाती रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। उनका कहना था कि 40 सालों बाद रिजर्व वायर पर 15 MGD टैंकों की सफाई की जा रही है। आपको बताते चलें कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि सानेहाए गुल प्लाजा का रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया, वाक़े की FIR भी दर्ज कर ली गई। कल परसों तक तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ जाएगी।
सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। सानेहा से सबक हासिल करते हुए मुस्तकबिल में इस तरह के सानेहात की रोकथाम के लिए इक़दाम उठाएंगे। कुछ फैसले वाटर बोर्ड ने हमारी इंतजामिया ने किए, इससे मुतालिक आगाह करना है। 40 सालों बाद रिजर्वायर पर 15 MGD टैंकों की सफाई की जा रही है। हालिया बारिशों के बाद हब डैम भर गया था। हब डैम पर नई कैनाल बनाई गई, जबकि हब डैम की पुरानी कैनाल को भी दुरुस्त करने से मुतालिक इक़दाम उठाए हैं ताकि 200 MGD पानी की सप्लाई मुकम्मल हो सके। नई कैनाल का काम 8 माह में मुकम्मल हुआ। पुरानी कैनाल की मुरम्मत की जा रही है। वफाकी हुकूमत से 100 MGD की पानी की मिक़दार बढ़ाने से मुतालिक बातचीत का आगाज़ करना था। पानी आना शुरू हुआ तो चैलेंज बिना रिजर्व वायर में कैपेसिटी की तादाद और फुकदान है। 7.5 MGD के 2 रिजर्व वायर हैं। 15 MGD पानी वेस्ट और किमाड़ी पहुंचाने में मदद मिलेगा, जबकि LSR पंपिंग स्टेशन की मुरम्मत से मुतालिक इक़दाम उठाए। हमने फैसला किया कि LSR पंपिंग स्टेशन की बहाली का काम भी करेंगे। सानेहा गुल प्लाजा बल्दिया टाउन के रिहायशी 2 सगे भाई ताहाल लापता। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुतासिरा खानदान से ताज़ियत का सिलसिला जारी। टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम आस्कानी मुतासिरा खानदान से ताज़ियत के लिए उनके घर पहुंच गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सानेहा गुल प्लाजा में बल्दिया टाउन यूनियन कौंसिल नंबर 11 के रहायशी 2 सगे भाई कामरान हनीफ पटनी और अदनान हनीफ पटनी ताहाल लापता हैं, जिसके बाइस इलाके में शदीद रंजो गम की फिजा कायम है। अफसोसनाक वाक़ये के बाद सदर PS 111 और टाउन चेयरमैन बल्दिया जनाब अब्दुल करीम आस्कानी, सदर PS 113 और टाउन वाइस चेयरमैन अजब खान सवाती, डायरेक्टर फिशरीज परवेज अहमद दोदास, सीनियर मारूफ सोशल एक्टिविस्ट शान चौधरी और जनरल सेक्रेटरी PS 111 उस्मान परियाल ने लापता भाइयों के घर का दौरा किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने लापता दोनों भाइयों के वालिदे मोहतरम और अहले खाना से मुलाकात की और दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर रहनुमाओं ने अहले खाना के हौसले को सराहते हुए सब्र जमील की दुआ की और कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतासरा खानदान के गम में बराबर के शरीक है और इंशाअल्लाह हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। इस मौके पर टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम आस्कानी ने कहा, फराहम की जाने वाली माली इमदाद किसी नईमुल बदल के तौर पर नहीं बल्कि खालिसतन इंसानियत के नाते है। उन्होंने बताया कि मुतासरा खानदान इंतहाई गरीब और मुश्किल हालात में जिंदगी बसर कर रहा है, जिसके पेश नजर उन्होंने अपनी जाती हैसियत में 5 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान किया था। टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम आस्कानी ने बाकायदा तौर पर लापता भाइयों के वालिदे मोहतरम हनीफ पटनी और दीगर लवाहिकीन के हाथों में 5 लाख रुपए नकद माली इमदाद हवाले की। उन्होंने कहा कि जहाँ तक मुमकिन हो सका वो मुतासरा खानदान की हर तरह से मदद और ताउन जारी रखेंगे। टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम आस्कानी का कहना था कि माजी में भी इस नौयत के सानेहात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुतासरीन को मुकम्मल कम्पनसेशन फराहम की है और उन्हें दोबारा बहाल करने के लिए अमली इकदाम किए गए हैं। उन्होंने अपील की है कि सानेहा गुल प्लाजा में जहां ताजिर बिरादरी के लिए कम्पनसेशन का ऐलान किया गया है, वहीं कम्पनसेशन वहां काम करने वाले दीगर शहीद होने वाले वर्कर्स के लिए भी हो और उनके लवाहिकीन की भी बहाली की जाए। उन्होंने मजीद अपील की कि साहिब हैसियत अफराद और पार्टी के अपने लोग भी इस मुतासरा खानदान की भरपूर मदद और ताउन करें ताकि वो इस मुश्किल वक्त में सहारा हासिल कर सकें। टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम आस्कानी ने उम्मीद जाहिर की कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सिंध हुकूमत इंशाअल्लाह ताजिर बिरादरी के साथ साथ सानेहा गुल प्लाजा में शहीद होने वाले गरीब वर्कर्स के लवाहिकीन के लिए भी मौसर इकदाम करेंगे और उन्हें रिलीफ फराहम किया जाएगा। आप देख सकते हो कि एक गरीब, एक बूढ़े बाप की एक फरियाद है, किसी तरह भी हमारे बच्चों की बाकियात हमें मिल जाएं, हम उनकी तदफीन कर दें ताकि हम तसल्ली हो जाए कि हमने अपने बच्चों को की कब्र है हमारी, ये बच्चों की जगह है। तो उसके लिए ये इनका सिंपली ये एक मुतालबा है। तो इसमें हमने एक बारहा अपना हुकूमती जो एहलकार हैं उनसे भी हम राब्ते में हैं। किसी तरह इनके बच्चों का इनसे DNA सैंपल तो ले लिए गए हैं, किसी तरह इनका किसी तरीके से भी उनके जो बच्चों की बाकियात हैं वो मिल जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रोसेस है वो DNA का काफ़ी लंबा होता है, लेकिन ये कि 1-2 रोज़ के अंदर इनका ये मामला, ये जो है इशू है, ये सोल्व हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये एक गुल प्लाजा में 2 गरीब वर्कर थे, वहाँ पर काम करने वाले थे, अदनान और कामरान हनीफ पटनी। तो ये
यहाँ से जाते थे रोज़ अपने रिज़्क़ हालाल के लिए, अपना गुल प्लाज़ा काम करने के लिए। तो ये एक वो अपनी उनको एक शहादत नसीब हुई है। वो एक अपनी एक जहाद पे थे, अपने घर वालों के लिए, रोज़गार के लिए निकले हुए थे, वो तो शहीद हैं। लेकिन ये है कि मेरा हुकूमती नुमाइंदों और अपने सिंध गवर्नमेंट से भी ये मुतालबा है कि जिस तरह ताजर बरादरी के लिए ऐलान किया गया है, इसी तरह जो वर्कर वहाँ काम करने वाले हैं उनके लिए भी कंपनसेशन का ऐलान किया जाए। पीपल्स पार्टी एक मुतवस्सित तबके और गरीब अवाम की पार्टी है, वो इस बात पे यकीन रखती है। वो इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द सिंध हुकूमत इनके लिए इमदाद का भी ऐलान करेगी और इनको बेहतर तरीके से कंपनसेट करेगी। जिस तरह सिंध हुकूमत ने एक ट्रांसपेरेंट तरीके से पहले टिम्बर वार्कीर वाला मामला हुआ उसको हल किया। इसके अलावा अनगिनत इस तरह की मिसालें हैं हमारे पास और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला गोल प्लाज़ा का जो सानिया है और इसमें जो शहीद हो गए हैं उन तमाम शुहदा के घरों को और उनको शुहदा को बेहतर जो वर्कर हैं उनको, जो दुकानदार हैं, जितने भी शुहदा हैं सबको कंपनसेट करेगी और बेहतर तरीके से और बेहतर अंदाज में करेगी। हमने ज़ाती हैसियत में इनके लिए इस गरीब का घराना है, आप लोगों ने देख सकते हो कि वो बीमार भी हैं, वो ख़ुद भी पेशेंट हैं, इनके पास दवाइयाँ और ये सारी चीज़ें जो इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के सामान यहाँ पड़े हुए हैं वो काफ़ी एक कसम पुरसी की हालत में हैं। तो हमने इनके लिए अपनी ज़ाती हैसियत में दोनों भाइयों के लिए 5 लाख का ऐलान किया है। और इसके अलावा हमने अपने जितने भी हमारे पास जो साहिब हैसियत लोग हैं बल्दिया टाउन के, मेरी उनसे भी अपील है कि इनको किसी भी तरीके से जो भी आपसे मुमकिन हो सके इस घराने की मदद करें और इस दुख की घड़ी में इनके बराबर हम खड़े हैं और इसी तरह पूरा बल्दिया टाउन इनके साथ खड़ा है और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे जो दोस्त हैं साहिब हैसियत दोस्त वो इनकी ज़रूर मदद करेंगे। वाइस चेयरमैन अजब खान सवाती से भी मुतासरा ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार किया। गुल प्लाज़ा में हमारे बल्दिया टाउन के 2 नौजवान इस सानिए में शहीद हो गए और आज हम उनके घर में आए हैं। उनके वालिद साहब भी बड़े गम का माहौल है घर में और ये 2 बेटे इस पूरे ख़ानदान को पालने का एक वाहिद ज़रिया था और इनके ये 2 बेटे थे और दोनों इस हादसे की नज़र हो गए। आज हमारे साथ टाउन चेयरमैन और दीगर हमारे पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िम्मेदारान और हमारे यूसी के चेयरमैन और कौंसलर सब आए हैं और इससे पहले भी हम आए और वक्तन फ़वक्तन हम इनसे राब्ते में भी हैं और इनके जो भी मुतालिबात हैं हमने अपने बड़ों तक पहुंचाए भी हैं और मज़ीद इनके जो मुतालिबात हैं हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे बड़े हैं सिंध गवर्नमेंट में हमारे जो मिनिस्टर हैं उन तक उनकी आवाज़ हम पहुंचाएंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह के सानहात में जिस तरह उन्होंने ऐलान किया है और जो इसमें शहादतें हुई हैं उनको भी अकेला नहीं छोड़ेंगे और उनकी भी मदद होगी और इस बात की हम यकीन दहानी करते हैं और हमारी बड़ों से भी बात हुई है। और इस सानिए में ये जो बल्दिया टाउन का जो एरिया है यहाँ से ये दूर दराज इलाका है, कच्ची आबादी है, गरीब लोग हैं और इस गुर्बत में ये यहाँ से ये फैमिली पूरी फैमिली इन 2 शुहदा जो शहीद हुए हैं हनीफ भाई के फर्जंदान, इन दोनों का इस पूरी फैमिली के ऊपर डिपेंड था। आज वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे, ये फैमिली बिल्कुल बेयारो मददगार है। इसकी मदद के लिए जो हमारे टाउन चेयरमैन साहब ने भी ऐलान किया है, दीगर हमारे दोस्त हैं वो भी इंशाल्लाह मदद कर रहे हैं उसकी और सिंध गवर्नमेंट से भी इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश है, हम इनकी बात पहुंचाएंगे और इनकी भरपूर मदद की जाएगी। PS 111 के जनरल सेक्रेटरी उस्मान परियाल ने कहा पीपल्स पार्टी का एक कारकुन उनके गम में बराबर का शरीक है। हुकूमत से यही ताल्लुकात है कि बस हमारी लाशें हमारे बच्चों की मिल जाए और बस थोड़ी सी मदद हो जाए ताकि हम अपना गुजारा कर सकें। और क्या कहेंगे, ये 2 ही बच्चे कमाने वाले थे, मैं तो कैंसर का मरीज़ हो गया हूँ भाई। मेरे को तो ये देखे अभी बाईपास वो कराया मैंने, नहीं कोई नहीं आया, कोई गवर्नमेंट के तरफ से। ये हमारे भाई आए 2 दफ़ा आ चुके हैं हमारे पास और कोई नहीं आया। तो आपने वहाँ पर जाके किसी से रब्ता किया? नहीं, किसी से रब्ता नहीं किया। उनके पास गए थे तो बोलते जाओ अपनी तरीके से ढूंढ सकते हो तो। अरे भाई लाशें आपके पास है, हर चीज़ आपके पास है,
दिए उन्होंने, हमारा खून ले लिया, हमारी फोटो कापी ले ली, हमारे बच्चों की तस्वीर ले ली, फिर भी लाशें नहीं दे रहे हैं। ऐसे में गम से निढाल लापता बच्चों के वालिद ने कहा, अल्लाह ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। उन्होंने रहनुमाओं की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। आज सानिया गुल प्लाज़ा में जिनके मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि हम जब इनका दुख सुनते हैं और जब इनके साथ बैठते हैं तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि इनकी जो तकलीफ़ है उसका तो कोई नेमो बदल है ही नहीं, लेकिन हम सुन के कितनी तकलीफ़ में है इसका अंदाज़ा शायद ही कोई लगा सके। और इनका बड़ापन देखें कि वो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि हमें जो है वो अपने प्यारों की जो है वो बाकियात हमारे हवाले करें ताकि हम उनकी तदफीन कर सकें। तो हम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई के साथ हमारे टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी साहब, हमारे वाइस चेयरमैन टाउन के हैं अजब भाई, यूसी चेयरमैन, बाकी तमाम दोस्त यहाँ मौजूद हैं और हम इनके साथ शाने से शाना, कंधे से कंधा मिला के इनके साथ खड़े हैं। हम इनका दुख रत्ती बराबर भी कम नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि इनके दुख में थोड़ी बहुत भी कमी ला सकें। इंशाअल्लाह सिंध गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है। हम हमारे पार्टी के वर्कर, पार्टी के ज़िम्मेदारान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनके दुख का मदावा किसी तरीके से हल कर सकें और इनकी बच्चों की लाशें जो हैं वो जल्द अज जल्द इन तक पहुंचाई जा सकें ताकि ये वो तदफीन कर सकें। मैंने पहले कहा कि हम इनका दुख कम नहीं कर सकते, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से ये दुनियादारी है जो ये गुजारने में इनको थोड़ी सी हम अपनी तरफ से मदद करें। तो करीम भाई ने ऐलान किया कि इनकी माली सपोर्ट की जाए, वो थोड़ा सा हिस्सा है। हम जैसे कि हमारे दूसरे दोस्तों ने, परवेज़ भाई ने इनके साथ सपोर्ट किया, जब भाई ने कहा, दूसरे दोस्तों ने कहा, मैं भी एक छोटी सी कोशिश करता हूँ कि आइंदा आने वाले 6 महीने तक इनके घर में जो है वो हर महीने राशन पहुँचा दिया करें। इंशाअल्लाह हम वो पहुँचाएँगे। ये हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है, आप यकीन करें इनके दुख के आगे कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हम थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि इनके दुख में थोड़ा सा कमी ला सकें, इनके ज़ख्मों पर मरहम लगा सकें। अल्लाह पाक इनके लिए और सानिया गुल प्लाज़ा में जितने भी शहीद हुए हैं, जितने भी शहदा हैं, उन सब के लिए आसानी फरमाए, उनके लवाहिकीन के लिए आसानी फरमाए और ये दुआ करते हैं कि आने वाले वक्त में कभी दोबारा इस तरह का वाक़या रोनमा ना हो। इस मौके पर डायरेक्टर फिशरीज परवेज अहमद दोदा, सीनियर सोशल एक्टिविस्ट शान चौधरी समेत तंजीमी ओहदेदारान, यूनियन कौंसिल चेयरमैन जयाले और दोस्त अहबाब भी मौजूद थे, जिन्होंने मुतासरा खानदान से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।